हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The migration of the Aryan. There is a most important topic here. The author of the Vedic hymns as were to the Aryan. But who were to the Aryan? First of all, your question, your mind, who were the Aryans? In the 19th century, Aryan were considered as a race. Now it is a thought of there is a strict group of people who spoke Indo-European language. There is a speak Indo-European language from which later immigrated. And Sanskrit is Latin is a Greek etc. This is a reflect from to the word in this is a language which are similar in a sound and meaning. Thus, the Sanskrit word is a mantris and pitris are is a similar to the Latin matter and pater. There is the most important here. This same word in the Latin and the Sanskrit word mantri pitri and the Latin is a mentor pater. Similarly, the inner of the Hitter is a Turkish language is similar in the to Indra of the Vedas. And the Suryas is the Marathas of the Kasistri is a Manupustima. Yani Mesopotamia is the inscription and the equivalent of the Vedic Surya on Marut. There is a most important here. On there are Mesopotamia and the inscriptions, and originally the Aryans seem to live somewhere in the steppes stretching from the southern Russia to the central Asia. From here a group of them migrate the northern west India and come to this called Indo-Aryan or just Aryan. The archaeologist is the evidence of the migration come from what is known as the Andronovo. Is a culture situated in the southern Siberia. The culture is a flourish in the second millennium BC is from here. People moved to the north of Hindu Kush, the area known as the Bactrians, Margana, and the archaeological is a complex and from here the ancient India. During the period between 1900 BC to 1500 BC, we get in this is evidence horse, pork, wheels, fire cutter, and the cremation, which is a forming important part of Aryan life in India. Apart from this, there is an artifact and the is a ceramics is also suggests the movement of people from the Central Asia religions to the South Asia regions. And however, it may be noted that some scholars still agree that the Aryan were to the indigenous people of India and that they did not come from outside. The new peoples come in the serval is a batches, spanning serval is 100 years. All this is a well interaction between to the Indo-Genesis inhabitant and the newcomers is continually. One of the important results of the process of interaction was that the Vedic form of the Aryan language has become predominant in the entire northern western India. The text is composed in this language as I mentioned above are popularly known as the Vedic text. Here show the map is the most important 3500 BC to 1500 BC. There is a map of this type. There is the most important here Arabia, India, China, Asia, and the Aryan is come here. The Aryan is a mark of is here arrow show the Aryan come in India is a 2500 BC. The Indos. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है आर्य का स्थानांतरण। देखिए आर्य के जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो है वैदिक काल के बारे में कर रहे हैं तो आर्यन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आर्यन जो है दूसरे जगहों से भारत में प्रवेश किया और उन्होंने यहाँ पर जो है कई सालों तक अपना जो है अस्तित्व बनाए रखा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर हम वेद मंत्रों के लेखक आर्य हैं तो ये बात जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भाई आर्यन थे कौन। क्योंकि यहाँ पर बात ये आया है कि वेद मंत्रों के लेखक जो थे आर्य थे। जब आर्य थे तो आर्य थे कौन? कहते हैं 19वीं सदी में आर्यों का एक वंश माना जाता था, परंतु अब इन्हें ऐसी भाषा समूह के लोगों के रूप में माना जाता है जो इंडो यूरोपियंस भाषा बोलते थे
और उस भाषा से बाद में संस्कृत, लैटिन और ग्रीक इत्यादि भाषाओं का जन्म हुआ। इसकी जानकारी इस भाषाओं के शब्द से मिलती है जिनकी ध्वनि और अर्थ सामान्य ही होती हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अगर समझने के लिए कि संस्कृति, लैटिन और ग्रीक, इनके भाषा का जो वर्ड है कई मानने में एक जैसे ही दिखते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि संस्कृत शब्द में हम मात्र या पितृ कहते हैं और इसी को लैटिन वर्ड में मात्र और पितृ से ही मिलते हैं। यानी देखिए कितना मिलता जुलता वर्ड है। सिर्फ लिखने में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा लेकिन उच्चारण करने में एक जैसा ही है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसी प्रकार अब हम इनार शब्द जो कि हित्ती तुर्की भाषा से है, वेद काल में इंद्र शब्द के सामान्य था। यानी सूर्य, यास और मारुत्यस शब्द जो है कसाइड यानी मेसोपोटामिया से जो शिलालेखों में हमें मिले हैं। वेदाकाल सूर्य और मारुतन के समान ही है। तो इससे आप ये बात समझ सकते हो कि हो सकता है कि आर्यन हो, चाहे आपका इंडो हो, चाहे ग्रीक लैटिन हो, संस्कृति की इन भाषाओं से एक बात तो क्लियर हो गया है कि वो उन्हीं लोगों में से थे जो भारत में आए थे। लेकिन क्योंकि हमारे समय जो था उस समय नहीं था, इस वजह से हमें पूरी जानकारी नहीं प्राप्त है। लेकिन उनके लेखों से हमें ये बात साफ समझ लेना चाहिए कि उनका अंश जो था कहीं ना कहीं जो है लैटिन या ग्रीक से जरूर मिलता जुलता था और उसी से संस्कृति का भी जन्म हुआ। तो ये बात समझाने के लिए पर्याप्त था और ये उदाहरण भी काफ़ी है कि मात्र और पितृ को जो है मात्र और पितृ जो है लैटिन भाषा में कहते थे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इसका बात को। माना जाता था कि आर्य लोग मुख्यतः दक्षिण रूस के से मध्य एशिया के बीच फैले घास के मैदान स्टोपस में रहते थे। ये हमारी कल्पना है, ये मानना है हमारा। यहाँ से आर्य जो है कि एक समूह ने भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवेश कर लिया और इन्हें इंडो आर्यन अथवा केवल आर्य के नाम से ही पुकारा जाने लग गया। स्थानांतरण के जो है प्राथमिक साक्ष्यों से पता चलता है कि यह स्थानांतरित लोग दक्षिण साइबेरिया स्थित जो है इंद्रोनोवो सभ्यता से आए थे। यानी हो सकता है कि ये माइग्रेट करके आए हों। यह सभ्यता दो जो है सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व काल में विकसित हुई थी। यहाँ से ये लोग जो है हिंदू कुश के उत्तर, जिसे हम बैक्ट्रिया या मार्जियाना या आर्कोलॉजिकल जो है कॉम्प्लेक्स कहा जाता था, की ओर अग्रसर हुए और वहाँ से उन्होंने भारत में प्रवेश कर लिया। इस काल में यानी 1900 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के दौरान इन क्षेत्रों में हमें घोड़े, आयु पहिए, अग्नि की उपासना और शवदाह के जो है साक्ष्य हमें मिलते हैं। यानी शव जो थे उसको कैसे जलाया करता था, इसका भी हमें साक्ष्य मिला है। और ये सब चीज़ें भारत में जो है आर्य के जीवन का प्रमुख भाग रही है। तो इससे हमें बहुत बात समझ में आता है कि हो सकता है कि आर्य जो लोग थे उन्हीं में से एक थे जो साइबेरिया से जो है भारत में आ गए और यहाँ पर बस गए। क्योंकि कहते हैं कि उस समय लोग वो बसा करते थे किसी क्षेत्र में जहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी हो, वहाँ की कंडीशन जो है फेवरेबल कंडीशन हो और वहाँ पर रहने लायक अवस्था हो, तो वो लोग बहुत आसानी से वहीं पे माइग्रेट कर जाते थे। आज के समय में भी देखोगे लोग गाँव से प्रलयान शहरों में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सुख सुविधाएं मिल रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा ही समय उस समय भी रहा हो और ऐसा होता ही है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो इस बात को साक्ष्य करने के लिए कंप्लीट है कि हो सकता है कि आर्य उन्हीं में से एक थे। इसके अतिरिक्त अगर कलाकृति और मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों से भी यह संकेत मिलते हैं कि लोग जो है मध्य एशिया से दक्षिण एशिया क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हुए हैं। परंतु कुछ विद्वान अभी भी इस तर्क पर बहस करते हैं कि भाई शायद ऐसा ना हो। अब देखिए, बहस करना तो जनरल सी बात है कि अगर हम बहस नहीं करेंगे तो नए कंक्लूजन नहीं निकलेगा। आर्य भारत के जो है स्वदेशी लोग थे और किसी भी बाहरी स्थान से भारत में नहीं आए। ये बहुत से जो है जो स्कॉलर है उनकी थिंकिंग है जो कि बहुत अलग बताती है। ठीक है, लेकिन क्या था, देखिए दोस्तों, उस समय की जो साक्ष्य है हम उसी को ही प्रमाण मान सकते हैं क्योंकि हमारे पास वहाँ पर जीवित प्रमाण नहीं है। सिर्फ हमें कुछ साक्ष्य जो मिले हैं उसी बेस पे जो है हम इसको जो है शब्दालिक अर्थ बना सकते हैं। नए लोग कई हजार वर्षों की अवधि के दौरान अनेक समूहों में भारत आए थे और इस अवधि में जो है देशज आबादी और बाहर से आए नए लोगों में परंपरा जो है कार्यकलाप चलते रहे। परंपरा कार्यकलापों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक मुख्य बात यह हुई कि आर्यों की वैदिक किस्म की भाषा संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्र की प्रमुख भाषा बन गई और इस भाषा में रची गई प्रचलित पुस्तकें जिनकी उल्लेख के ऊपर दिया गया है वैदिक साहित्य कहलाया।
देखिए, इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जिस तरह के इंडिया के जो लोग होते हैं, अभी देखते हो हर एक देश में फैले हुए हैं। तो इंडिया से कुछ ना कुछ लेके जो है अपने दूसरे देशों में वो लोग जाते हैं। तो वो अगर मान लीजिए अगर वो पूरे दुनिया ख़त्म हो जाता तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ के लोग जो थे दूसरे देशों में हर जगह फैले हुए थे। तो ये सब बात एक साक्ष्य के रूप में होता है। तो हो सकता है कि आर्यन का भी ऐसा ही रूल रेगुलेशन रहा हो कि वो किसी क्षेत्र में रहते हों, लेकिन यहाँ व्यापार करने के लिए आए, चाहे किसी कारणवश यहाँ आ गए तो यहाँ के वो निवासी बन के रह गए, क्योंकि उनको तो साफ उस समय चाहिए था कि उनको रहने का सही कंडीशन ज़रूरी था, और वो कंडीशन शायद इंडिया में मिल गया हो तो वो यहाँ के ही निवासी बन गए। तो ये बहुत बड़ी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने के लिए ज़रूरी था। इस बात को अगर देखने के लिए आप देख सकते हो कि हाँ, आर्य के आगमन को जो है तीर के निशान से दिखाया गया और सिंधु नदी के पास इनको बसाने का जो है प्रावधान किया गया था। देखा जाए तो आर्यन की बहुत सी चीज़ें जो हमें सिंधु नदी के आसपास ही मिली है, और कहते हैं ये समय काल जो थी 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि हो सकता है कि आर्यन दूसरे जगहों से आए हो और वो भारत में जो है इसकी कंडीशन उनको काफ़ी भा गया हो और ये यहीं पे बस गए हो। तो इसमें कोई भी जो है बहस करने वाली बात नहीं है। ये क्लियर है कि आर्य जो थे कहीं दूसरे क्षेत्र से आए थे और यहाँ पर कंडीशन उनको सही लगा तो ये हमेशा के लिए यहाँ के नागरिक बन के रह गए।